So today we are going to discuss how to do AC analysis for a transistor. Okay. So AC analysis means if we have a transistor, okay, and we are supplying some DC power supply, and DC power supply will keep our operating point in active region. Now, if I want to amplify my signal, okay, so that signal should be small. Okay, so when I apply small signal, I told you yesterday that we can treat separately. DC biasing and AC biasing we can deal separately, like we have done in the case of diode. Okay, so common ammeter configuration, as we all know, that it is used for we use for amplifier. Okay, so this more suitable configuration for amplification. So first of all, what is the quantity we need? We want to discuss a amplifier. Okay, so suppose I have amplifier. Okay, so in amplifier we are interested in four quantities. Okay, so first of all thing, what is the input voltage? What is the input voltage we are applying? Okay, what is the input current? Okay, and what is the input impedance? Okay, what is the terminal? What is the impedance at input terminal? Similarly, we are interested in output voltage, okay, and output current, and what is the impedance at output terminal. Okay, so I'm writing it as a Z2, okay, and this ZI, or you can write Z not also, Z output. Okay, so if I want to calculate a input impedance, okay, so I need input voltage divided by इनपुट सर मतलब एम्पलीफाई करने के लिए ये सब पैरामीटर्स वी वांट पैरामीटर चाहिए, जो भी सैंपल एम्पलीफाई करेंगे, ओके, तो उस सर्किट के ये पैरामीटर्स चाहिए हमको. ओके, सो क्योंकि हमको पता ही है इनपुट लो होगा, आउटपुट ज्यादा होगा, तभी तो एम्पलीफाई होगा. ओके, यस सर यस सर सो इनपुट एम्पिडेंस, आउटपुट एम्पिडेंस, so output impedance is V naught upon I naught. Okay, similarly I want voltage gain, कितना एम्पलीफिकेशन हो रहा है, वोल्टेज गेन कितना है, voltage gain. Okay, voltage gain is defined by V naught upon V input. Okay, and current, if I want current gain, okay, so for current I need here one load resistance, okay, RL. So current gain will be I naught upon I input. Okay, now from circuit you can see, okay, this is my V naught. Okay, plus minus, and current is going opposite direction. So if I want to write I naught, it will be simply V naught upon RL. Okay, and if I want to write my I, okay, that will be V input upon क्या आएगा, Z input. Okay, so my current gain will be now minus V naught upon V input, okay, ZI RL. This is nothing, this is the voltage gain, so minus AV voltage gain, okay, ZI upon RL. Okay, so these are the four quantities we are interested, okay, in amplifier. So before we discuss these things, okay, I want to show how a transistor circuit is, okay, simplified for AC signals. Okay, so we know that common ammeter configuration. Okay, so common ammeter configuration, we know we have this transistor here. Okay, so this is NPN transistor. So current is going here. Here IC is coming. This is my C terminal. Okay, this is my base terminal, and this is my ammeter terminal. Okay, E, and this is grounded. Now, if I want to apply input, okay, so I'll apply here my input. Okay,
and in output I can take here, okay, which will be nothing, output will be VCE. So this will be my output here, okay. So plus minus, here I can take output, okay, and here IC is coming from source, okay. So now I want to give a model, okay, because like we have seen in diode, if we want to solve the circuit, okay, we have to we want a model, okay. Without model it is difficult to solve the circuit for AC analysis, okay. So for model we have to see, that means we should have a model, okay, which is equivalent to its input and output characteristics, okay. So we know when common ammeter configuration, my input voltage is VBE, okay, this is VBE, okay. So I'm writing for AC, so I'm writing a small letter, either we write capital VB, okay. So VBE, okay, so VB is my input voltage, okay, and I measure what I measure, IE or IB, IB. IB, okay. So this is my IB, okay, keeping IE constant, okay. So this is keeping what constant? What is input characteristics, okay. So input characteristics, okay, and then we have output characteristics, okay. Output characteristics is what? IC and VCE, okay. So which is almost like a constant current, okay. So input input, okay, my characteristics are like a diode, okay, and output my characteristics is almost constant, okay. So I am getting IC constant, okay, that is beta IB. So in output, so that's why we say that we can model a transistor by current source, okay, current source by control current source, because you see the current is constant, output current is constant, and input it is like behaving a diode, okay. So if I want to write a equivalent circuit or a equivalent model for a transistor, what I can do, I can put a equivalent circuit, okay, and I can make it, input is behaving like diode, this is PN junction, this is behaving like diode, okay. So I can replace this junction by a diode, okay, and this is my, okay, this is my ammeter is grounded, okay, and IB current is coming here, okay. Top of that I'm getting IC current, okay, that means through the transistor, okay, this current is coming here, so the junction the current is coming IE, that means so this diode IE current is flowing, okay, clear hai to. And this is what, this is my VBE, okay, and this is Sir, IE. ये सर ट्रांजिस्टर की जगह you have taken diode. इस जंक्शन की जगह, इनपुट की जगह इनपुट जंक्शन है, क्योंकि उसका कैरेक्टरिस्टिक उसको वो इक्विवेलेंट है, कैरेक्टरिस्टिक देखा डायोड की तरह ही है, तो मैं इसको डायोड से रिप्लेस कर रहा हूँ, और आउटपुट को मैं करंट सोर्स से कांस्टेंट करंट सोर्स से रिप्लेस कर रहा हूँ, ओके. सो for input for input this is a circuit, okay, and for output the current is constant, so I'm getting IC, okay, and IC is again my beta IB, okay, IC is again what, beta IB. So this is current control source, okay, so this is my beta IB, okay, and this IB is coming here, small IB, okay. Now I have diode, okay, and this is my circuit. So this is IE is current coming, and here I have VBE, okay, but still I want to separate my input and output, okay. Here IE is coming, okay, while my input current is only what, my input current is only IB, so I want this should be solved for a IB, okay. And now I told you what is the equivalent circuit for diode. डायोड का सर्किट में डायोड को किससे रिप्लेस करते हैं, बैटरी और रेजिस्टेंस से, okay, बैटरी और रेजिस्टेंस है in the case of DC, okay. If it AC then only resistance, okay. If Yes, it is
if it is AC, okay, we can replace this diode by simply resistance. Okay, so I am itself here itself I am removing, okay, and I am writing here this is my RE, and IE current is flowing. Okay, so I can replace this junction by diode, and RE की वैल्यू क्या होती है? Eta VT upon Eta VT upon IE. Okay, yes, yes, sir. okay, so this is resistance. Okay, and this is value is 626 millivolt upon, okay, IE should be in milliampere. Okay, so resistance. हाँ, सर इसमें IE जो होता है वो इनपुट करंट है ना, वही अभी सॉल्व कर रहे हैं इसको अभी, ठीक है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे IE फ्लो हो रहा है, मैं चाहता हूँ IB फ्लो। ओके, तो आई नो I is equal to what? I is equal to or almost beta plus 1 IB. yes sir. Okay, or I can write IE should be almost beta IB. Okay, beta IB. So that means यहाँ पे beta IB करंट फ्लो कर रहा है. Okay, either IE flow या beta IB करंट फ्लो कर रहा है. Okay, but I want to flow IB only. But here voltage drop should not change. Okay, so what I'll do, I'll multiply this resistance by beta. Okay, so once I do this, अगर मैं इसको ऐसा कर दूं तो क्या हो जाएगा, मेरा ये कंप्लीट इनपुट और आउटपुट एकदम अलग हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, सपोज आई वांट टू राइट Z input, that is V input, I input. Okay, and here my V input is what? V input is VBE. Okay, and this is my I input. What is here? Here IE. Okay, IB, sorry, IB. Okay, my input is IB. Okay, now what is VB? My VB is REIE upon IB. Okay, and my IE is beta plus 1 IB upon IB. So IB से IB cancel हो गया, and beta is greater than 1. So I can simply replace this by beta RE. Okay, so now what is the final equivalent circuit for this transistor? Okay, so I am putting here, I am dubbing this one. The final final equivalent circuit. Okay, what we are going to use in the circuit, that is simply this resistance in the input, that will be beta RE, and IB current is flowing. Okay, this is grounded, and here we can replace output by simple a current source. We are putting in diamond shape, that is current control source. Okay, current control source, which is value is beta AB. Okay, and this is my equivalent circuit. Okay, for a transistor. Here what beta IB current is coming, beta IB current is coming here. हाँ बोलिए. हाँ सर, आपने ZI को कैसे निकाला? V input upon I input. हाँ, V input upon I input. Okay, so now I जो आ रहा है वो V input जो आ रहा है, मेरा करंट जो आ रहा है यहाँ से. Okay, this is my V input. अच्छा, RE corresponds to the diode resistance और उसकी हेल्प से आपने हाँ VBP निकाल लिया. हाँ, मैं कुल मिला के लॉजिकली मैंने ये बताया है कि मुझे इसको I को यहाँ से हटाना है. ठीक है, हाँ सर. तो वो बीटा IB होता है, तो मैंने इसको बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बात तो वही होगी. अब ये तो चेंज हुआ नहीं, यहाँ तो वोल्टेज वही का वो रहा, और इनपुट करंट हमारा IB हो गया, तो दोनों सेपरेट हो गया, इनपुट आउटपुट. हाँ बोलिए. Okay sir. Okay. Yes sir. So now whenever I want to replace this transistor सर अच्छा सर, मतलब IE बीटा IB होता है सर, तो रेजिस्टेंस से ही बीटा को मल्टीप्लाई कर दिया. हाँ ताकि VB चेंज ना हो. ठीक है, अच्छा. तो अभी हमारा जो इक्विवेलेंट सर्किट है, दैट इज दिस बीटा RE और बीटा IB. ओके, सो आपको सर्किट में जहां भी है ट्रांजिस्टर को इस सर्किट से रिप्लेस करना है. ओके, आगे चले. यस सर. ओके, आलोक आगे क्या सर? 1 मिनट सर, ये लेफ्ट हैंड वाला बना लो. ओके, लेफ्ट हैंड वाला ये बनाना अभी. अच्छा, बैठा दो अभी इसको.
इसको मिटा दो ना इसको तो। हाँ यस सर। सर एक मिनट सर। हाँ, तो अभी क्या एसी, आपका जो एसी एनालिसिस है वो तो डीसी से भी सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। ओके, तो अभी देखेंगे कितना सिंपल हो जाता है सॉल्व करना। अब देखो, जब भी मुझे एसी सॉल्व करना है तो मुझे आर ई तो चाहिए ही चाहिए। और आर ई कितना होता है? आर ई कितना होता है? बीटा वीटी अपॉन आर ई। आई। तो Yes, sir, I. तो अगर मुझे अगर एसी 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 के लिए सॉल्व भी करना है, एसी सिग्नल के लिए, तो डीसी से आई तो निकालना ही पड़ेगा। ओके, तो पहले सर्किट को मुझे डीसी के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, डीसी सॉल्व करके मुझे आई निकालना पड़ेगा। आई मिलते मुझे आर ई मिल जाएगा, बस आर ई मिल गया, फिर कुछ नहीं चाहिए, फिर जस्ट यू कैन गो फॉर एसी एनालिसिस। तो आई कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में आर ई निकालने के लिए, ठीक है, आई निकालने के लिए डीसी एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके बाद में वो बाकी सब एसी पे हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर्किट को, तो बहुत सिंपल है। फॉर एग्जांपल मुझे फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन मिला हुआ है। ओके, कॉमन एमीटर फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है? फिक्स्ड बायस में क्या होता है? दो रेजिस्टेंस होते हैं। ओके, Yes, sir. so we have transistor, okay, we have a power supply, we have RC, okay, then we have RB, okay, और RB कहाँ जाता है? RB जाता है अपना बेस में। okay, so this is my grounded ammeter is grounded, this is NPN transistor, so I current is coming here. okay, now AC के लिए क्या चाहिए हमको? कैपेसिटर चाहिए। तो अगर मुझे V इनपुट देना है, ये कैपेसिटर है। ठीक है, और आउटपुट के लिए भी चाहिए मुझे कैपेसिटर चाहिए। अगर मुझे आउटपुट में वीसी ले रहा हूं, ओके, सो हियर आल्सो आई नीड सम कैपेसिटर, सो दैट जो डीसी पार्ट नहीं आना चाहिए। ये मेरा वी आउटपुट है। ओके, नाउ आई वांट टू कैलकुलेट द फोर क्वांटिटी व्हिच आई मेंशन अर्लियर। ओके, आई वांट टू कैलकुलेट जेड इंपीडेंस कितना है, ओके, और जेड आउटपुट इंपीडेंस कितना है, वोल्टेज गेन कितना है, करंट गेन कितना है, दोज ऑल थिंग्स आई वांट टू कैलकुलेट। ओके, सो उसको कैलकुलेट करने से पहले, ओके, एसी एनालिसिस के लिए मैंने आपको क्या बताया था? अभी देखो मैं आउटपुट यहाँ पे ओपन में ले रहा हूँ। ओपन में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और हो सकता है। ओके, इफ आई ऐड वन रेजिस्टेंस दैट विल बी R0। तो यहाँ पे मैं एक रेजिस्टेंस ऐड कर दूं, यहाँ पर एक और R0। सो अभी तो ओपन है, दैट मींस R0 इज इनफाइनाइट, कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं आउटपुट में। सो नाउ आई वांट टू सॉल्व दिस फॉर एसी। ओके, तो एसी के लिए इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा? जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले तो ट्रांजिस्टर एसी के लिए शॉर्ट सर्किट है, तो इसको शॉर्ट सर्किट कर दो। ओके, ये इसको शॉर्ट सर्किट कर दो। और यहाँ पे मेरा वीसीसी, यहाँ पे वीसीसी है, यहाँ पे वीसीसी है। ओके, प्लस वीसीसी है। तो जब भी एसी का एनालिसिस करेंगे तो डीसी को टर्न ऑफ कर देंगे। ओके, इसका मतलब डीसी को क्या कर देंगे? ये ग्राउंड कर देंगे, इसको ग्राउंड कर दिया इसको। ओके, क्लियर है ये? Yes, sir. अब ग्राउंड कर दिया, इसका मतलब क्या है? ये आरबी भी ग्राउंड हो गया और ये तुम्हारा आरसी भी ग्राउंड हो गया। समझाने के लिए इसको कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं। ठीक है, दोनों ग्राउंड हो गए। ठीक है, और ये क्या है? बेस से कनेक्टेड है और ग्राउंड से कनेक्टेड है। ओके, सो इसका इक्विवेलेंट सर्किट सिंपल करना है तो मैं क्या कर सकता हूं? इसको सिंपली ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं। ओके, ताकि वो लगे कि इसके पैरेलल में है। ठीक है, वो पैरेलल में ही है। ठीक है, एक तो बेस पे है और एक ग्राउंड पे है। ठीक है, सिमिलरली हियर आरसी, ओके, आरसी आल्सो कनेक्टेड टू कलेक्टर और यहां से और ग्राउंड है, तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूं। ओके, आरसी, तो अब मेरा क्या है? सर ये वीसीसी को ग्राउंड क्यों किया था? वीसीसी का ग्राउंड किया है
तो तभी तो अच्छा आरबी हाँ, आरसी। तो वीसीसी ग्राम बता देता है। अगर एसी सिग्नल के लिए निकाल रहे हैं तो डीसी को यस जीरो सर, मानेंगे, और यस सर। ठीक है, और डीसी के लिए निकाल रहे हैं तो एसी को जीरो मानेंगे। ठीक है, अच्छा, तो इसलिए वीसीसी ग्राउंड हो गया। ठीक है। तो अभी मुझे निकालना है जेड इनपुट, ओके, और जेड आउटपुट निकालना है। ठीक है, अभी अब ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करना है, ट्रांजिस्टर का इक्विवेलेंट सर्किट लगाना है। जो सर्किट हम अभी कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड आरई मॉडल। अभी जो हम कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड आरई मॉडल, ओके। तो अब ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दो, तो ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा सर बताओ। एक करंट सोर्स और बीटा आरई रेजिस्टेंस। ठीक है, तो एक बस एक रेजिस्टेंस आ गया यहाँ पर, बीटा आरई। ठीक है, बीटा रेजिस्टेंस आ गया, और क्या आएगा, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, आईबी, यस सर। ओके। यहाँ इसमें बीटा आई भी हो जाएगा। हाँ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आउटपुट में, बीटा आई भी करंट। ओके, नीचे आ रहा है बीटा ए बी करंट आ रहा है, ओके। और इसके और ये आरसी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या जा रहा है, यहाँ पे करंट कितना जा रहा है, इसमें बीटा ए बी जा रहा है, और आरसी में जो करंट आ रहा है उसको बोल दो आई नॉट, ओके। तो आई नॉट विल बी, अगर सर्किट में देखोगे, आई नॉट इक्वल टू आई सी, अगर कोई और रेजिस्टेंस नहीं है, जैसे मैंने बताया था ना यहाँ पे सर्किट में, अगर ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ पर कोई और रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ नहीं है, तो जो रेजिस्टेंस इस आरसी में आ रहा है ये आरसी है, तो ये आईसी ये आईसी नहीं है अभी, ओके। अगर ये सर्किट में यहां से करंट डिवाइड हो जाएगा तो ये आईसी हो जाएगा, तो इसको बोलो आई नॉट है, ओके। और अगर ये एक और रेजिस्टेंस नहीं है सर्किट में, इनपुट रेजिस्टेंस को नहीं है, तो ये आई नॉट आईसी है, और अदरवाइज क्या होगा, करंट का डिवीजन हो जाएगा, ओके। तो मैं एक सर्किट और एक रेजिस्टेंस और जोड़ देता हूँ यहाँ पर, से आर नॉट, यहाँ जोड़ दो या जोड़ दो, कहीं भी जोड़ दो एक जगह, यहाँ जोड़ दो, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं जो अपना वोल्टेज ले रहा हूँ वो आर नॉट पे ले रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे निकालना है जेड आउटपुट, ओके। तो सर, हाँ, सर ये ट्रांजिस्टर की जगह बीटा आरई और आईबी तो आ गया सर। बीटा आ रही तो आ राइट। गया, आई भी आ गया, हाँ, हाँ। ये लेफ्ट वाला समझ में, ये राइट वाला लेफ्ट में वाला क्या? तो करंट सोर्स है ना, आउटपुट को करंट सोर्स से रिप्लेस कर दिया, इनपुट को डायोड से रिप्लेस किया और डायोड को रेजिस्टेंस से रिप्लेस किया, आउटपुट को करंट सोर्स से रिप्लेस किया, करंट कंट्रोल सोर्स से रिप्लेस किया, क्योंकि वो अच्छा, आउटपुट वाला ये रिप्लेसमेंट है। या आउटपुट का रिप्लेसमेंट है, ठीक है। और अच्छा आरसी तो था ही, एडेड था ही उसमें, ठीक है। एक यस रेजिस्टेंस सर, एक यस सर। रेजिस्टेंस तो आर नॉट जोड़ दिया। अगर ये ओपन है तो आर नॉट इनफाइनाइट हो जाएगा, वरना अगर आर नॉट दे रखा है 50 केल्विन 60 केल्विन, अगर आर नॉट इज वेरी ग्रेटर देन आरसी, देन ये नेगलेक्ट हो जाएगा, पैरेलल ही नेगलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज इसको सर्किट में कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब निकालो, सबसे पहले वन निकालो, इनपुट इनपुट इंपिडेंस निकालो। सर बीटा आर ई इंटू आर बी और बीटा आर ई प्लस आर बी। इनपुट इंपिडेंस क्या हो जाएगा, इनपुट पे कितना इंपिडेंस है, इनपुट पे दो ही तो रेजिस्टेंस है, यस सर। किसी भी टर्मिनल पे आप कैसे रेजिस्टेंस कैसे निकालते हो, आउटपुट टर्मिनल पे, ये देख लो दोनों पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा, आर बी, ओके, आर बी इज पैरेलल टू बीटा आर ई, ओके। ये आपका जेड जेड हो जाएगा, ओके। इसको कैसे कर सकते हैं, आर बी बीटा आर ई, ओके, आर बी प्लस बीटा आर ई। और अगर अब आर बी इज ग्रेटर देन बीटा आर ई, और जनरली इफ आर बी इज ग्रेटर देन 10 बीटा आर ई, वैसे तो हम बोलते ग्रेटर देन, पर एक लिमिट दे रखी है बुक्स में स्टैंडर्ड करने के लिए, इफ आर बी इज greater than 10 beta re, okay, then in that case we can neglect this rb because both are parallel में जो छोटा है वो डोमिनेट करेगा, okay. So then if this is case, if then my z impedance is simply what, beta re, okay. तो ये मेरा z impedance का फॉर्मूला हो गया कॉमन एमीटर फिक्स बायस के केस में। हालांकि इस सर्किट के अंदर जब आप एसी एनालिसिस कर रहे हो आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ओके। बट मैं करके दिखा रहा हूं ताकि जब आप करो, क्योंकि सर्किट आ गया, रेजिस्टेंस पता है, तो आप इनपुट निकाल सकते हो, आउटपुट निकाल सकते हो, करंट गेन निकाल सकते हो, वोल्टेज गेन निकाल सकते हो, तो कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है अगर आपको निकालना आता है तो थोड़ा सा ये करने से आपको हल्का सा आइडिया रह जाता है क्या करना है, ओके। तो ये तो हमेशा फिक्स ही आएगा,
ठीक है, अगर फिक्स बायस है तो जेड आई इक्वल टू बीटा आई, दिस इज योर इनपुट इम्पीडेंस। ओके, नाउ आई वांट टू कैलकुलेट माय आउटपुट इम्पीडेंस। ओके, सो आउटपुट कैसा आएगा? आउटपुट में क्या क्या है? सर आर आउटपुट एंड आर सी। सही है, बाकी लोग? यस सर। तो जे नोट कितना जाएगा? आर नॉट पैरेलल टू आर सी। आर सी। ओके, एंड इफ अगेन आर नॉट इज ग्रेटर देन 10 RC, okay, then that case my Z naught will be simple, कितना हो जाएगा? RC। आर सी। तो बस क्वेश्चन में पूछे कि इनपुट इम्पीडेंस कितना है, तो बीटा आर ई, ओके, या फिर और RC, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो बस इतना सिंपल याद करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आउटपुट, हो गया इनपुट इम्पीडेंस हो गया। नाउ नेक्स्ट थिंग क्या है? सर एक चीज, ये इम्पीडेंस मींस होता है करंट फाइंड करना ना? इम्पीडेंस में करंट होता है, इम्पीडेंस एसी का रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अच्छा, इम्पीडेंस एसी वाला तो इसीलिए जेड नॉट ओके सर, समझ हाँ, में। ठीक है। अब हमको निकालना है, क्या निकालना है? अब हमको निकालना है वोल्टेज गेन, थर्ड। ओके, सो वी आउटपुट कितना है? ठीक है, यहां पर आएगा वी आउटपुट। तो वी आउटपुट कैसे निकालेंगे बताओ? सर आई आउटपुट इंटू जेड आउटपुट। हम्म, सर आई आउटपुट इंटू जेड आउटपुट। आई आउटपुट इंटू जेड आउटपुट जब करंट से मल्टीप्लाई करेंगे नेट रेजिस्टेंस का। तो आई नोट तुमको पता नहीं ना, ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे भी, हमको ये तो पता ही है ये वी नॉट है, ठीक है, यस सर। और हमको ये पता है कि ये जो दो करंट है, ये करंट जो बीटा ए बी है, तो ये दोनों करंट क्या है? ये अगर इनका मैं इक्विवेलेंट ले लूं तो एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है, यस सर। और इक्विवेलेंट से कितना करंट फ्लो होगा? बीटा ए बी। सर अगर मैं इनका इक्विवेलेंट ले लूं तो ये एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, और इस करंट जा रहा है बीटा ए बी, तो वही इसी से आएगा ही। ओके, तो सिंपल मेरा, अब ये प्लस माइनस है करंट, लेकिन करंट माइनस से प्लस जा रहा है, तो ये बीटा माइनस, तो करंट हो जाएगा बीटा ए बी, और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? इनटू आरसी इक्विवेलेंट वाला ना सर? आर नॉट। ओके, तो ये हो गया मेरा वी नॉट आउटपुट वोल्टेज। वोल्टेज। ओके, नाउ आई वांट टू इनपुट वोल्टेज। आई वांट इनपुट वोल्टेज। ओके, सो आई बी क्या है? आई बी क्या है? इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस। ओके, जेड आई। ओके, सो जेड आई। ओके, तो उसको मैं लिख देता हूँ, इनपुट को लिख देता हूँ मैं वी आई इक्वल टू बीटा आर ई। ओके, आर बी का कंपेरिजन में है, सो आई कैन रिप्लेस दिस इज द बीटा आर ई। ओके, नाउ सो आई बी विल बी नाउ वी इनपुट बीटा आर ई। ओके, और ये क्या आ जाएगा? बीटा से बीटा कैंसिल हो गया। ओके, तो ये हो गया आर सी पैरेलल आर नॉट। ओके, सो नाउ इफ आई वांट माय एवी, एवी इज सर व्हाट? ये इनपुट वाला एक्सप्रेशन नहीं समझ में आया, इनपुट वाला वोल्टेज कैसा निकाला है? अरे भाई इनपुट क्या है? हम्म, ये तो जा रहा है, ये तो मेरा इनपुट है, आई भी Yes, जा रहा है, sir. बीटा आर भी जा रहा है ना, ये तो इनपुट है, हाँ, ठीक तो है। आई बी इंटू तो वी बीटा आई आर सो वी आई अपॉन आई बी क्या आ जाएगा? आई बी क्या आ जाएगा? वी आई अपॉन बीटा आर ई। ये जो आप यहाँ तो करंट पता ही है हमको, आई बी जा रहा है, ये वोल्टेज तो वी इनपुट है, यस सर। ठीक है। तो हाँ, आई बी इंटू बीटा आर बी होगा ना सर? तो आई बी इक्वल टू क्या देगा? वी आई अपॉन बीटा आर ई नहीं होगा क्या? आई बी इंटू बीटा आर ई सेम बात है ना, हम करंट ले रहे हैं ना, ठीक है। ओके सर, और सर बीटा फिर मल्टीप्लाई क्यों हुआ? बीटा कहाँ मल्टीप्लाई हुआ? तो वो बीटा इंटू वी आई अपॉन, वो तो पहले से ऊपर से है ना, वो तो करंट तो बीटा आई भी था, अच्छा ओके सर। ठीक है। सो नाउ आई कैन राइट दिस इज एज ए माइनस, ओके, वी नॉट अपॉन वी आई। ओके, तो वी आई को नीचे भेज दो, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस, ओके,
माइनस आर सी, ओके, आर नॉट, ओके, अपॉन क्या है, आर ई, आर ई। ठीक है। और इसमें भी कंडीशन लगा दो, if r naught is greater than equal to 10 rc, okay, so my ab will be now what, v naught upon v input, माइनस okay, आर सी बाई आर ई। minus simple minus rc upon re, okay। तो बस इस फॉर्मूले तुमको याद रखने हैं, उससे ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो क्या हमारा वोल्टेज गेन हो गया। अब क्या बचा हुआ है, करंट गेन, ओके। नाउ विल सी करंट गेन। ये क्लियर है यहाँ पे? सर ये इनपुट वाला वोल्टेज है सर, उसका ये क्या बीटा इंटू वी आई अपॉन बीटा आ रही है, मतलब बीटा इंटू वी आई अरे अपॉन भाई आईबी को लिखा है मैंने बीटा, ये आईबी को लिखा है वी आई अपन बीटा आ रही, क्योंकि यहाँ से मेरा वी इनपुट क्या है, वी इनपुट है मेरा क्या है, आईबी बीटा आ रही है। तो आईबी क्या हो जाएगा, वी वी आई अपन बीटा आ रही नहीं होगा क्या, ठीक है। यस सर। तो इसको करने से मेरा मुझे वी इनपुट मिल गया, मैंने डिवाइड कर दिया तो मुझे वी आउटपुट मिल गया, ठीक है। यार तुम वी सीधे वी इनपुट लिख के डिवाइड कर दो, एक ही बात है, ठीक है। वी नॉट को वी निकाल के डिवाइड कर दो तो आएगा तो यही, ओके सर, ओके सर। ठीक है। नाउ द लास्ट इज करंट गेन। अब ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो, ओके। अब करंट गेन कैसे निकालेंगे बताओ, करंट गेन क्या होता है? वी आउटपुट अपॉन जेड आउटपुट, वी इनपुट अपॉन जेड इनपुट। आई नॉट अपॉन आई होता है ना, ठीक है। अब मैं ठीक है, अब मुझे आई नॉट चाहिए, ठीक है। तो आई नॉट चाहिए, तो इस सर्किट से आई नॉट कितना आ रहा है बताओ। अगर मुझे इस सर्किट में करंट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, आर आउटपुट अपॉन आर आउटपुट प्लस आर सी इनटू टोटल करंट भी। अगर मुझे सपोज ये करंट उल्टा आ रहा है और दोनों में डिवीजन हो रहा है, यस सर, ठीक है, डिवीजन लगा लेंगे। करंट डिवीजन लगा दो भी, समझ लो ये करंट यहाँ आ रहा है, यहाँ जा रहा है, अब मुझे इसमें कितना करंट जा रहा है, तो इतना करंट, टोटल करंट इनटू व्हाट, इसमें रेजिस्टेंस करंट चाहिए तो रेजिस्टेंस का आर नॉट, और टोटल रेजिस्टेंस आरसी प्लस आर नॉट, आरसी प्लस आई नॉट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा ये तो मेरा हो गया आई नॉट हो गया, तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, आई नॉट अपॉन आई बी मिल गया। आई नॉट बाय आई बी इज माई बीटा आर नॉट आर सी प्लस आर नॉट, ओके। अब मुझे इनपुट पे आ जाओ, ठीक है। इनपुट पे कैसे निकालूंगा मैं करंट, इनपुट में यहां से इनपुट करंट आ रहा है, ठीक है, और इसमें आई बी जा रहा है। तो अगर मुझे आई बी लिखना है तो मैं आई बी कैसे लिखूंगा, टोटल करंट आई इनपुट, ओके, आर बी अपॉन इनटू आर बी अपॉन बीटा आर ई प्लस कैपिटल आर बी प्लस बीटा आर ई, ठीक है। यहां से मुझे मिल जाएगा आई बी अपॉन आई इनपुट, ओके, आर बी प्लस बीटा आर ई, ठीक है। अब मुझे चाहिए ये वाला, तो इसको सिंपली आई बी से डिवाइड कर दो और आई बी से मल्टीप्लाई कर दो, आई इनपुट, ओके। तो यहाँ से दोनों वैल्यू मिल जाएगा, तो यहाँ से मुझे पता ही है, दोनों वैल्यू पता ही है। सो देन दिस विल गिव मी नाउ ए आई इज इक्वल टू व्हाट, दिस वन बीटा आर नॉट आर सी प्लस आर नॉट, ओके, into what, RB प्लस बीटा RE। तो ये मेरा हो जाएगा एक्सप्रेशन, ओके, फॉर व्हाट, फॉर करंट गेन, ओके। पर ये बहुत थोड़ा बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, याद तो रख नहीं सकते इसको, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए एक सिंपल तरीका है, पहले तो स्पेशल केस देख लेते हैं। स्पेशल केस क्या है, if R naught is greater than 10 RC and same time if RB is greater than 10 beta RE, in that case AI क्या हो जाएगा मेरा, बीटा R naught RB प्लस RB कैंसिल हो गया। तो करंट गेन क्या होता है, करंट गेन तो बीटा ही होता है, यस सर, यस सर, कॉमन मीटर में, तो वही आएगा अगर ये केस कंडीशन लगा दी जाए तो, ओके। और अगर इस कंडीशन से ये कंडीशन नहीं है
और तुमको ये फॉर्मूला तुमको याद नहीं हो रहा है, ओके, तो एक सिंपल फॉर्मूला जो मैंने शुरू में लिखवाया था करंट गेन का फॉर्मूला है माइनस ए बी जेड आई अपॉन आर सी, जो फर्स्ट लगाया था। यहाँ पे मान लो कि तुम्हारा जो आउटपुट है, आउटपुट में टोटल आरसी आएगा, मतलब इससे क्वेश्चन आंसर एकदम ऑलमोस्ट जरा जाता है 0.1% का डिफरेंस आएगा आपका आंसर में, पर ये हर सर्किट में लग जाएगा ये, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रख लो। वोल्टेज का निकालना तो आसान नहीं है, वोल्टेज का तुमको पता ही है, आरसी तुमको पता ही रहेगा, जेड इम्पोर्टेंस तुमको पता रहेगा। इसको पुट करके इस फॉर्मूले से जो वैल्यू निकालोगे और इस फॉर्मूले से वैल्यू निकाल दोनों सेम ही आएगी, ओके। तो इस फॉर्मूले को भी याद रख लो। So this was your formulas, okay, for fixed bias, okay। और मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको इम्पीडेंस निकालना आता है सिंपल तो आप सीधे निकाल सकते हो, ओके। अब क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे करना है। इसको रब कर दो। यस सर। क्वेश्चन ले लेते हैं पहले। So I have been given one circuit. Okay. This is my circuit. Okay. This is 470 ohm. Okay. And here I have one more resistance of 3 kilo ohm. Okay. And here I have 12 volts power supply. Okay. Here I have capacitance and V naught. This is 10 microfarad. Okay. And this is, and beta is given as 100. Okay. And R naught एक बार आपको लेना है इनफाइनाइट ओपन देना है, एंड सेकंड टाइम आपको लेना है 50 किलो ओम, ओके। तो एक टाइम आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाना है, एक टाइम ओपन रखना है, एक रेजिस्टेंस लगाना है। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा बताओ सर्किट में, वी इनपुट, ओके। तो सबसे पहले तो डीसी करना है। डीसी करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डीसी के लिए क्या करते हैं सर, कैपेसिटर्स को ओपन सर्किट कर देते हैं। हाँ, डीसी एनालिसिस के लिए कैपेसिटर को ओपन सर्किट कर देंगे तो ये सर्किट सट जाएगा, ठीक है, ये सर्किट सट जाएगा। तो आपका सिंपल डीसी बन गया, जैसे अभी तक करते आए हो, इतने सारे क्वेश्चन किए हैं। ये आपका आई है, ठीक है, इसको स्मॉल बोल दो आप, जो ऐसी कर रहे हैं तो बस आप निकाल लो। ये आपका आई बी आ रहा है, आई बी आ रहा है, तो आपको पता ही है आई क्या होता है, आई इज बीटा प्लस 1 आई बी, और आई बी निकाल लो। आई बी कितना आएगा बताओ, आई बी कैसे निकालोगे, सिंपली इसको सिलिकॉन मान के, सिलिकॉन, ओके, वीबी कितना आएगा 0.7, सो इट्स 12 वोल्ट्स, ओके, माइनस 0.7 वीबी, ओके, एंड देन व्हाट, आरबी 470 ohm, this is what 11.3 470, ये आएगा ना, ठीक है, किलो, दिस इज किलो ओम, सॉरी किलो ओम दे रखा है क्या, तो देना Yes. चाहिए किलो। हाँ दिस इज किलो ओम, दिस इज किलो ओम, तभी तो आरबी ज्यादा होगा, दिस इज आरबी, दिस इज आरसी। तो कितना आ रहा है, मेरा आ रहा है 24 माइक्रो एम्पियर, ओके, जो भी है 24 माइक्रो एम्पियर, ओके। और आई कितना आ जाएगा, बीटा लिखा है। तो इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में तो आपको निकालना है आर ई, ओके, देन वी जेड इनपुट, जेड आउटपुट, वी इनपुट और करंट की। हाँ, आई कितना आ रहा है 2.4 आ रहा है, 2.428 मिली एम्पियर, ओके। सो आई आ गया, तो आप आई पता चल गया तो आपको सीधा सीधा आर ई तो निकल ही जाएगा, आर ई इज व्हाट एन, ओके। और इसमें ईटा की वैल्यू इसने दे दी है, कुछ वैल्यू दी नहीं इसने, सीधे 1 होगा, 1 कर दो, इसको 26 कर दिया, 26
millivolts, okay, divided by 2.428 milliampere. So RE कितना आ जाएगा? RE आ जाएगा 10.7 10.708 ओम, जो भी है, मेरा 10.7 आ रहा, ठीक है, 10.71 ओम। ओके, सो दिस इज, अब तो आसान है। अब क्या है, एक बार ये हो जाए, आपको आई पता चल जाए, आपको आर पता चल गया, तो आर को लिख लो साइड में, आर इज 10.71 ओम, और तो कुछ चाहिए नहीं मुझे। अब इसका एसी इक्विवेलेंट बनाना है, ठीक है। एसी इक्विवेलेंट बनाने का तरीका क्या है कि इसको इसको ग्राउंड कर देंगे। इसको ग्राउंड कर दो, सोर्स ग्राउंड कर दो, ठीक है, ग्राउंड कर दो तो ये नीचे आ जाएगा। ओके, इसको ऐसे नीचे ड्रॉ कर दो, 470 किलो ओम, ठीक है। और ये तो यहाँ पे आपका वी इनपुट हो जाएगा। एंड देन सिमिलरली इस साइड भी, अभी आर नॉट में इनफाइनाइट ले रहा हूँ, जब आप 50 लोगों को तो आप दो जोड़ोगे, ओके, मैं एक ही जोड़ रहा हूँ। सो मैं जोड़ रहा हूँ ओनली दिस आरसी को, जोड़ आरसी को मैं इधर जोड़ दे रहा हूँ। आरसी कितना है? 3 किलो ओम, ओके, और यहाँ ये वी नॉट है। एंड उसके बाद में फिर क्या करते हैं, ये करने के बाद में ट्रांजिस्टर का लिखते हैं हम लोग, तो वी इनपुट, ओके, वी इनपुट 470 kilo ohm, this is giving I input, okay, then this is beta RE, okay, and then we have what, ये तो हो गया हमारा इनपुट का, तो हो गया, इसमें IB फ्लो कर रहा है, and then transistor beta IB flowing here, okay, and here what we have, here we have only one resistance, this is 3 kilo ohm, and here I have V output, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है से आई नॉट है, और इस केस में तो आई नॉट बीटा आई भी हो जाएगा। ओके, जी ये क्लियर है ना सर्किट? यस सर। ओके, अब आप सर निकाल लो। राइट मोस्ट साइड वाला आउटपुट आदमी निकाल रहा है ना, इसी का आउटपुट वाला। हाँ, ये आउटपुट निकालना है, ठीक है। हाँ सर। अभी मैं निकाल रहा नहीं, हूँ, आर नॉट मेरा इनफाइनाइट है, तो मैंने रेसिस्टर जोड़ा नहीं यहाँ पर, आपको जोड़ना है सेकंड केस में 50 किलो करके निकालना आंसर, ठीक है। ओके सर। तो अभी अब बताओ मुझे इनपुट इंपीडेंस कितना है इस सर्किट में? बीटा आर कितना हो जाएगा? बीटा आ रही हो जाएगा 1.081 किलो। बीटा आ रही है 1.018 1.081 किलो। 08 किलो ओम, ओके, ठीक है। सो अभी अगर मैं ये 470 है, ये 1.081 है, तो दोनों पैरेलल है, तो मेरा जेड इनपुट कितना हो जाएगा? 0.081 किलो। 470 किलो ओम पैरेलल टू 1.081 किलो ओम, ओके। तो ऑलमोस्ट ये बहुत ज्यादा है, तो ऑलमोस्ट यही आएगा, तो थोड़ा सा चेंज होगा, तो मेरा आ रहा है 1.069 किलो ओम, ओके, थोड़ा सा मॉडिफाई होगा। आइदर तुम यू कैन सिंपली राइट 1.081 किलो ओम, क्योंकि वो तो इसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो दिस इज 1.0, आ रहा क्या तुम लोग को, आ रहा है क्या? हाँ सर। यस सर, यही आ रहा है सर, ओके, यही आ रहा है सर। और जेड आउटपुट कितना आ जाएगा? 3 किलो। जेड आउटपुट तो अच्छा। ये आरसी के इक्वल हो जाएगा। भाई जेड आउटपुट, जब भी आप किसी टर्मिनल पे रेजिस्टेंस निकालते हो तो क्या करते हो? वोल्टेज सोर्स को कर देते हो शॉर्ट सर्किट, और करंट सोर्स को कर देते हो ओपन, ओके। जेड डॉट की डेफिनेशन ही ये है कि वी इनपुट इज 0, ओके, वी आउटपुट अपॉन आई नॉट व्हेन वी इनपुट इज 0। जैसे ही वी इनपुट को 0 किया, आपका आई बी 0 हो गया, आई बी 0 होते ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, इसका मतलब क्या है, ये ओपन सर्किट हो गया। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? जब भी आपको आउटपुट निकालना है तो वी इनपुट को 0 करना पड़ेगा, वी इनपुट को 0 करते ही आई बी 0 हुआ, आई बी 0 करते ही बीटा आई बी 0 हुआ, 0 हुआ, इसका मतलब ये ओपन हो गया, ओके। अब आपका जो इस पे रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो खाली 3 किलो आ रहा है, दैट इज ओनली योर 3 किलो, ओके। दिस इज योर, पहले जो डेफिनेशन लिखी है मैंने आउटपुट रेजिस्टेंस की, वहां ये चीज लिख लेना जो शुरू में लिखाई थी, दैट इज व्हाट, वी नॉट अपॉन आई नॉट व्हेन वी आई इक्वल टू 0, ओके। तो जेड नॉट निकल गया, 3 किलो निकल गया, ठीक है। अब क्या निकालना है? वोल्टेज गेन निकालना है, वोल्टेज गेन।
ए बी, ओके। तो वी नॉट कितना है आपका, आपको पता ही है वी नॉट कितना है आपका, वी नॉट कितना है, बीटा ए बी बीटा आई बी इंटू 3 किलो आर सी, ओके। और बी इनपुट कितना है, आई बी इंटू बीटा आर ई, 1.01 हाँ बीटा आर जो भी आप कर देते हैं, बीटा आर आई बी कैंसिल, ओके। सो ये हो गया बीटा, बीटा 100 दे रखा है, आर सी दे रखा है 3 किलो ओम, ओके। और ये दे रखा है, और बीटा भी कैंसिल हो गया ना, बीटा भी कैंसिल हो गया, तो 3 किलो ओम अपॉन 1.081 किलो ओम, ओके। सो वोल्टेज गेन कितना आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन में, अराउंड 3 आ रहा है, ठीक है। मेरे पास सॉल्व किया हुआ नहीं है, चेक। 2.77 सर हाँ आउटपुट वोल्टेज वी आउट मतलब वोल्टेज गेन वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट होगा ना सर? हाँ हाँ, तो वी आउटपुट तो समझ में आया, वी इनपुट कैसा किया, आई बी इंटू, ये वाला अच्छा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ना सर? अच्छा वो दोनों भी सेम पहले है। फॉर्मूला, पहले जो फॉर्मूला निकाला हो तो फॉर्मूला लिख लो, जो आपको मैंने यस लिखा है वो फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला से लिख दो, ठीक है, वरना ऐसा करके देख लो, ठीक है। लेट मी चेक द ओके आंसर, सर। आंसर वोल्टेज गेन आ रहा है आपका क्वेश्चन, फिक्स बायस ना, और 3/1071 आ रहा है, इसमें तो क्या आ रहा है, यस सर, यही आ रहा है सर। ये कितना आ रहा है, सर 1071 ही आएगा सर। नहीं आंसर में तो, आंसर में तो दे रखा जेड जेड डॉट ए दे रखा है 280 माइनस 280, क्या करवा रहे हो तुम, माइनस आरसी अपॉन आर ई, ए माइनस आरसी अपॉन आर ई, सॉरी हाँ फॉर्मूला तो यही तो है, माइनस माइनस आरसी, माइनस माइनस तो आएगा उधर, ठीक है ना, वो जब हमने ऐसे किया था माइनस उल्टा तो आएगा ना, क्योंकि ये प्लस माइनस है, तो माइनस आरसी अपॉन, हाँ, तो ये रहेगा ना जो आपने लिखा है 3/1.81। हाँ हाँ अभी 3, ये तो 3 रहेगा, आरसी तो 3 रहेगा, और ये तो ये थोड़ी आएगा, 10 ओम आया था ना, हमारा कितना आया था, आर ई कितना आया था पहले, आर ई कितना आया था, आर ई तो इतना ही आया था, 10 पॉइंट समथिंग आया था 1.081। अरे 10 वो आर वो बीटा आर ई था, आर ई कितना था 10.7, 10 शुरू में निकाला था, जो शुरू में आर ई निकाला था फर्स्ट 10.71 था, हाँ सर 10.71, यस सर, हाँ यस सर, तो इससे आ जाएगा तुम्हारा आंसर 10.71। 280, 280 का आसपास आ रहा है, और ये नंबर देख के पता चल जाता है 280, 3 किलो में ये, और वो ओम में था, ठीक है। यस सर। अब करंट गेन निकाल लो, डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल लो करंट गेन, जो मैंने दिया है करंट गेन, तो ये तो बीटा के इक्वल ही हो जाएगा करंट गेन, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्मॉल चेंज है ना सर। अभी सर अभी कितना आया, अभी 280 है ना, बीटा इक्वलेंट कहाँ आया, Yes, वो sir। करंट गेन निकालना तो वो इक्वल आ जाएगा, अब निकालो करंट गेन कितना आ रहा है, निकाल के तो बताओ। सर हाँ सर मैं ये कह रहा हूँ जो इनपुट का वोल्टेज होगा सर, वो जो 1.081 के क्रॉस होगा सेम होगा ना सर? मतलब सेम कैसा जो, होगा, हाँ या ये तो ये करंट तो आई इनपुट है ना, ये हमको पता कहाँ है, यस सर, हमको हम तो इसको कर रहे हैं भी, या तो हाँ सर, इन दोनों का तुम निकालो, इन दोनों का वो निकालो पूरा, ठीक है, और फिर आई, फिर आई से 136.92 करो, वो हमको पता नहीं है अभी, तो हम क्या है, ये पता आई ही बी इंटू, यस सर आई बी इंटू ये कर देंगे तो वी इनपुट इनपुट निकल जाएगा ना? इनपुट निकल जाएगा, तो ये तो कर रहे हैं, ओके सर, ओके ठीक है। और आई कितना आ रहा है, फॉर्मूला क्या है, माइनस ए वी जेड आई बाई आर सी। जेड आई बाय आर सी, ओके। तो अभी यही निकाला हमने, ए वी 280, टू कितना है 280.11, जेड आई कितना है सर 1.081 किलो 1.081 किलो ओम, आर सी 3 किलो ओम, यस सर। ओके। कितना आ रहा है 136.92 136.92 192, तो हाँ हम डायरेक्टली एवी पुट नहीं कर सकते सर यहाँ पे, हाँ कर फॉर्मूला सकते, पे सर? हाँ डायरेक्ट फॉर्मूला Direct- डायरेक्ट पुट कर तो सकते सर डायरेक्ट, उस हिसाब से बीटा ही आ जाएगा सर। मेरा अभी जो ये तुम्हारा गलत आ रहा, 100 ही आना चाहिए, कैसे चेक करो, कैसे बता रहे हो, आएगा सर। हाँ 99.77 हाँ मिलीएम्पियर, हाँ 100, ऑलमोस्ट 100 के आसपास ही आएगा, 97, यस सर, 99.77। हाँ ये आएगा, इसी के आसपास ही आएगा, लेकिन कैसे सर, मतलब
फॉर्मूला फॉर्मूला लगाओ ना। अच्छा यस, मेरी गलती हुई सर, एक सेकंड। ये जेड आई इतना ही आ रहा है क्या बीटा आई? हाँ हाँ सर, एक्चुअली मैंने 280 की जगह 380 लिख दिया था, इस वजह से कैलकुलेशन मिस्टेक आ रहा है। ओके, तो वैसे भी देखो यहाँ से ये तो 1 ही है, इसको करोगे तो क्या आएगा, 100 के आसपास जो तो आएगा। ये 300 मान लो उसको, तो 100 आ जाएगा, 100 ही तो आएगा। सही है ये जो भी आ रहा है, ठीक है। सो इस तरह यू कैन कैलकुलेट ऑल द पैरामीटर्स, ओके, फॉर ए एम्पलीफायर सर्किट। तो एग्जाम में भी क्वेश्चन बड़े सिंपल ही आते हैं, अभी तक तो आना शुरू हुए नहीं, एक आध क्वेश्चन ही आए हैं। तो दिस वाज आरई मॉडल। सो ये तो हमने किया अभी जिस फिक्स बायस के लिए, और कल हम करेंगे डिवाइडर के लिए। सिमिलर सिमिलर टाइप ऑफ थिंग्स है, 2 दिन करेंगे। वंस यू नो कॉमन अमीटर, ओके, देन यू कैन डू इट फॉर कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, उनका सर्किट बता देंगे, करने का तरीका सेम ही है। तो कुछ क्वेश्चन आप कर लेना, ओके। जी सर। सो सर हाँ, सर ये ZI में सर इनपुट वाले में सर 2 रेजिस्टेंस था, 470 और बीटा आरई सर। तो बीटा आरई की वैल्यू कम थी एज कम्पेयर टू 470, इसीलिए सर आपने इधर ZI 1.081 से मल्टीप्लाई किया ना। ओके यस सर। यस यस। थैंक यू सर। Thank you, sir. कौन सी बुक फॉलो कर रहे हो तुम लोग इसके लिए? नोट्स फॉलो कर रहे हाँ, हैं, नोट्स फॉलो कर रहे हैं। और इसके अलावा बुक्स अभी तो आपका लेक्चर नोट्स ही फॉलो हो नहीं हो रहा ठीक से। नहीं, बुक्स तो फॉलो करनी पड़ेगी। ट्रांजिस्टर के लिए बॉल स्टेट की बुक फॉलो करो। ये बाकी जो मैंने सर्किट नेटवर्क के लिए तो तुमको बताया था मैंने शुरू में, ठीक है। ट्रांजिस्टर के लिए तुम बॉल स्टेट बुक करो आंख बंद करके, अच्छी तरीके है, ठीक है। जी सर, हम्म। थैंक यू सर।